Assalamu alaikum viewers, my dear students. Today my topic is about the reproduction. It's reproduction and animals. Before that, I will discuss the type of production in animals. Let me tell you that कि एक ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है और बर्थ होने के बाद वो डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ से गुजरता है, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो उस डेथ को रिप्लेस करने के लिए एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाता है। तो वो ऑर्गेनिज्म भी अपनी लाइफ कंप्लीट करता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती रहती है। एंड जब नया ऑर्गेनिज्म एक क्रिएट किया जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस इज टू बी कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। सो लेट मी डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट it is the type of reproduction. So if we are going to define the reproduction, how we are defining it, that we are finding that it is the process in which new organisms are generated. New organisms are generated from already existing ones. From existing ones. So I'm going to define that it is the process in which the new organisms are generated from already existing ones. तो ये already existing ones जो होते हैं ना, ये बिलोंग करने चाहे ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज। या हम ऐसे भी इस रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं कि इट इज द क्रिएशन और प्रोडक्शन। हम इसको वैसे भी डिफाइन करेंगे, हम ये भी बताएंगे कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स, इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स from the already existing ones of same species. So we are going to define the reproduction. I am just telling you that it is a type of production in which new organisms are generated from already existing species of the already existing species. तो ये already existing species जो होती है, उसी species से नए organisms जो होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि species होती क्या है। already existing species, let me explain the term over here. जो species की बात करते हैं हम, species कहते हैं किसे? species हो गए group of living organisms, that are capable of interbreed to produce fertile offspring. Okay, so the organisms belonging to same species, they will interbreed each other and they will produce fertile offspring. They are to be called, we call that they belong to the same species. उन्हें हम कहेंगे कि एक species से belong करते हैं, और वही species जब interbreed करते हैं तो प्रोसेस को बोलते हैं reproduction. तो मैंने कहा ये reproduction जो होता है, it is the production, नए organism जनरेट होते हैं, और ये जो नए organism जनरेट होते हैं, हर एक organism की अपनी एक, जब उसकी बर्थ होती है तो एक लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है, लाइफ स्पैन के बाद अब उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करने के लिए एक और ऑर्गेनिज्म आता है उसी स्पेशीज से। तो लेकिन उसके लिए हमें प्रोसेस चाहिए, उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। हम बताते हैं कि रिप्रोडक्शन इज it is a characteristic feature. It's a characteristic feature of the living organism. जैसे एक organism elimination of nitrogenous waste करता है through the process of excretion, okay? जैसे एक organism
response to stimuli karta hai. It is the characteristic feature of an organism. So an organism can give a proper response to a particular stimuli. It's a characteristic feature of an organism. So an organism can respire and utilize that oxygen within the body to liberate the energy. It is the characteristic feature of an organism. Okay, and an organism, after utilizing the food, liberates certain toxic materials like as ammonia, like as urea, like as uric acid, and elimination of these nitrogen waste out of the body is to be called as excretion. It is to be called as excretion, and elimination of the nitrogen wastes from the body is a characteristic feature of an organism. So like these features, तो ये feature, ये जो reproduction है, ये भी एक feature है. तो ये भी एक feature है कि ये feature, ये characteristic feature जो है, ये क्या चीज करता है एक reproduction में. पहली बात जो अभी मैंने बताया, ये ensure करते हैं किसी organism, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में इंश्योर करता है उसकी स्पेशीज को कंटिन्यू करने के लिए, उसकी स्पेशीज कंटिन्यू रखता है. तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज, इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज. It ensures the continuity of species. Let me add a point over here. A philosophical touch in the reproduction over here is that an organism without reproduction can live. This is a philosophical point, philosophical touch in the reproduction, that an organism without reproduction can live. Okay, without reproduction. एक organism without reproduction. An organism without reproduction can live. Without reproduction can live. But it is species can't. But it is species can't. So what do you mean by the point? What do you mean by these two lines? That if an organism without reproduction can live, but its species can't. तो मैंने अभी कहा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो अपनी लाइफ कंप्लीट करेगा, अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करेगा. लाइफ स्पैन मीन्स दैट, फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे बोलता हूं कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्पैन है 30 इयर्स, ओके, या कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्पैन जो है वो है 60 इयर्स, ओके. तो ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करेंगे. लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है. तो मतलब अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, अगर ये मतलब ये अपने नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, अगर ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक चीज करता है कि अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करेगा, तो लिव करेगा, अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करेगा, ठीक बात है, लेकिन इसकी स्पेशीज जो है वो जिंदा नहीं रहेगी. लेट मी एक्सप्लेन द पॉइंट. अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म था, लेट मी गिव एग्जांपल्स ऑफ द कश्मीरी हांगुल, वी जस्ट कॉल्ड इट अ डियर, ओके. तो हम बताते हैं इट्स एन endangered species. We are just continuously studying, we're just continuously giving a we are giving a protection, we are giving a preservation, we are giving the favorable circumstances where it can breed. We can protect it from the circumstances, we can protect it from the prevailing conditions. Why? Because we are giving the proper breeding ground to this Kashmiri hangul, we just call it stag, Kashmiri stag. Why? तो हम ये कहेंगे अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी आबादी कम होती जा रही है तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, फिर इनकी आबादी कम हो जाती है, फिर से रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता. विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा होगा कि अगर एक एग्जांपल, इसी हांगुल की एग्जांपल देंगे, तो ये अपनी लाइफ स्पेन, अगर इसका 30 इयर्स है तो लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गया, 30 इयर्स हो गए, कंप्लीट होगी, ये डेथ हो जाएगा. तो आप बताइए इसकी स्पेशीज अब नहीं रही ना, इसकी स्पेशीज नहीं रहेगी, आपको कोई कश्मीरी स्टैग नहीं मिलेगा. तो इसने लाइफ स्पैन तो कंप्लीट किया, ठीक है, लेकिन इसकी स्पेशीज जिंदा नहीं रही. अगर इसने रिप्रोडक्शन किया होता, अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गए होते, रिप्रोडक्शन किया होता, फिर उन्होंने भी आगे इसके जो ऑर्गेनिज्म, उसके जो कमिंग ऑफस्प्रिंग्स थे, उन्होंने भी इंश्योर रिप्रोडक्शन की होगी. तो आप ये कह सकते थे कि एक ऑर्गेनिज्म है, लाइफ स्पैन कंप्लीट किया, नए ऑर्गेनिजम्स आए, उन्होंने भी लाइफ स्पैन कंप्लीट किया, तो उन्होंने इंश्योर की रिप्रोडक्शन, अब ये स्पेशीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी रादर. तो लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, लेकिन इन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं की तो एक्सटिंक्ट हो गए. तो फीचर यही है कि एक ऑर्गेनिज्म विदाउट रिप्रोडक्शन लिव कर सकता है, लेकिन इस स्पेशीज लिव नहीं सकती, इसकी स्पेशीज नहीं रहेगी. क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि
जब रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स नहीं आएगी। तो पहला इंश्योर रिप्रोडक्शन ये करता है कि इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज, ये स्पेशीज इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज। ओके, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज। नेक्स्ट वन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम बताएंगे रिप्रोडक्शन का। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, आपने देखा होगा, we receive our characteristics, or we just call them traits. We receive our traits, or we just call them, we receive our traits or characters. We receive our traits or characters. What do you mean by trait? What's a trait? Let me first explain what is trait. A trait is the feature of an organism. A trait, अगर हम बात ह्यूमंस की करते हैं, हम बताते हैं what is the color of the hair, what is the color of the eye, it is to be trait. What is the size of the body, it is a trait. What is the color of the skin, it is a trait. And these traits are characters we receive these characters from our parents, we receive these characters from our mother, we receive these characters from our father. So these traits descend down in the coming offsprings by the process of reproduction. और ये traits जो होते हैं ना, इनको ट्रांसमिट करते हैं हेरिडिटी टूल्स, जिनको हम बोलते हैं जीन्स। तो ये जीन्स तब तक ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे। तो जीन जो होते हैं कंबाइन होके बनाता है डीएनए होके कंबाइन बनाता है क्रोमोसोम। तो ये ट्रेट्स जो होंगे ट्रांसमिट नहीं हो जाएंगे यार, तब तक नहीं हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म में जब तक नहीं एक ऑर्गेनिज्म इंश्योर करेगा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को। सो बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसमिट दीज ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। Not only the offspring, but we just call that as the coming or future generations. तो फिर यही ट्रेट्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनकी फ्यूचर जनरेशन, तो फ्यूचर ऑफस्प्रिंग से फ्यूचर जनरेशन में आ जाते हैं। तो पहला फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन का मैंने बताया कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी स्पेशीज को मेंटेन करता है, अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो स्पेशीज नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ट्रेट्स या कैरेक्टर्स, फीचर्स जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनको ट्रांसमिट करता है अपने ऑफस्प्रिंग्स में बाय द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो आई विल लेटर ऑन टेल यू दैट हाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इंश्योर द ट्रांसमिट ऑफ द कैरेक्टर्स, ट्रांसमिट ऑफ द पेरेंट्स, ट्रांसमिट ऑफ द ट्रेट्स और कैरेक्टर्स डाउन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। लेट वी डिस्कस दिस लेटर ऑन। सो लेट वी फर्स्ट proceed the process of reproduction। तो characteristics मैंने बता दी। अब हम characteristics के बाद अब जो हमें पढ़ना है that's about the mode। अब हम पढ़ेंगे ये जो एक organism होता है ना, ये reproduction कैसे करता है। So we will discuss now the types of reproduction, the process of reproduction, okay। सो लिसन, मैंने आपसे ये कहना था कि एक रिप्रोडक्शन का पर्पस ये होता है कि नए ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। ये जो नए ऑर्गेनिज्म्स होते हैं दे possess the same features, they possess the same characteristics, ओके। इनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेम फीचर्स होते हैं, एनाटॉमी इनकी